السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں فوج میں تقرر اور تبادلوں کے دوران DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DGISI تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فوج کے ترجمان ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ان کے ساتھ ہونے والی دیگر تعیناتیوں میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گوجرانوالہ، جبکہ کور کمانڈر گوجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر انہیں پاک فوج کا ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں وزیراعظم عمران خان نے بل گیٹس کو پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ حکومت کے مطابق بل گیٹس نے پولیو کی روک تھام کے لیے کوششوں پر وزیراعظم عمران خان کی تعریف کی اور انہیں پولیو کے خاتمے کے لیے پروگرام اور تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ بل گیٹس نے کہا کہ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے خاتمے کے پروگرام جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ان دنوں سیاسی صورتحال غیر مستحکم نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف پہلے اپوزیشن اور اب ان کی اپنی جماعت کے اراکین اسمبلی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان عوامی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 24 گھنٹوں میں رضاکارانہ طور پر حکومت چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ منگل کی شام ناراض اراکین نے بلوچستان اسمبلی کے باہر ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کھل کر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان پر BAP کے 11 اور چند اتحادی اراکین نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عدم اعتماد کی وجہ صوبے میں بڑھتی ہوئی بے چینی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اطلاعات و ثقافت کے نائب وزیر ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان کی خصوصی افواج نے گزشتہ رات صوبے کابل کے ضلع پغمان کی پشائی وادی میں ایک کارروائی کے دوران داعش خراسان کے 4 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ ایک اور واقعے میں اطلاعات کے مطابق بدھ کے صبح صوبے ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد شہر میں لغمان بس اسٹیشن پر 2 طالبان جنگجو ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ننگرہار کے صوبائی حکام نے واقعے کی تصدیق نہیں کی ہے اور ابھی تک کسی نے صوبے ننگرہار میں ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد کینیڈا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر 40,000 پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرے گی۔ افغانستان میں ہنگامہ آرائی اور کینیڈا میں کووڈ-19 وبائی مرض کے چوتھی لہر کے عروج کے دوران آبادکاری کا کام جاری ہے۔ افغان مہاجرین کی امریکہ آمد سے پہلے انہیں خسرے سے بچاؤ کی ویکسین بڑے پیمانے پر لگائی جا رہی ہے۔ پناہ گزینوں میں خسرے کے کچھ کیسز کے بعد انخلا میں 3 ہفتوں کا وقفہ آیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انخلا کے بعد امریکی فوجی اڈوں پر عارضی طور پر مقیم اور یورپ اور مشرق وسطی کے ٹرانزٹ پوائنٹس پر منتظر تقریباً 49,000 تارکین وطن کو ویکسین دی گئی ہے۔ افغانستان سے آنے والے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ بھی کروانا ہوتا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک امریکہ اور ملک سے باہر مختلف ٹرانزٹ مقامات پر موجود افغان مہاجرین میں سے 84% کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے سر سائمن گاس اور دوحہ میں افغانستان کے لیے برطانوی مشن کے چارج ڈی افیئرز ڈاکٹر مارٹن لانگڈن نے افغانستان میں
तालिबान से आज मुज़ाकरात किए। उन्होंने मौलवी आमिर खान मुत्तकी, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मौलवी अब्दुलसलाम हनफी समेत तालिबान के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की। मार्टिन लांगडिन ने एक ट्वीट में कहा कि उनके वफ्द ने तालिबान के साथ इंतहाई अहम मामलात पर बातचीत की, जिनमें इंसानी बहरान और दहशतगर्दी से निमटने, बरतानवी और अफगान बाशिंदों के इनखला के लिए महफूज रास्ते मुहैया करने और ख़वातीन के हुकूक की पासदारी शामिल हैं। अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंट्री डायरेक्टर मैरी एलन मैकग्रॉट्री का कहना है कि अफगानिस्तान में 14 मिलियन अफराद और 20 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और खुराक की किल्लत का शिकार हैं। वो कहती हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को इस वक्त भूख और ग़िज़ाइयत की कमी का सामना है। वो बुध के रोज़ काबुल में WFP फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू कर रही थीं। WFP ने पूरे अफगानिस्तान में ज़रूरतमंद लोगों के लिए खुराक की तकसीम के प्रोग्राम में इजाफा किया है और कहा है कि सन 2021 के आखिर तक उनकी रसाई 14 मिलियन अफराद तक होगी। इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने शिमाली सूबे कुंदुज के कुछ हिस्सों में लड़कियों के हाई स्कूल खोल दिए हैं। सोहेल शाहीन ने RTA वीडियो फुटेज भी शेयर की है, जिसमें तालिबान कहते हैं कि लड़कियां और लड़के बगैर किसी परेशानी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि लड़कियां खानाबाद सूबे कुंदुस में स्कूल जा रही हैं। कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने तालिबान के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि ये रुझान मुल्क भर में फैल जाएगा। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने, जो भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, नई दिल्ली में भारत के ख़ारजा सेक्रेटरी श्रृंगला से मुलाकात की और दोतरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वेंडी शर्मन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत अपने सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अफगानिस्तान और इंसदा दहशतगर्दी के मसले पर भी तबादले ख्याल कर रहे हैं। वेंडी शर्मन मंगल की शाम को नई दिल्ली पहुंची थी। वो जुमेरात को मुंबई में रहेंगी और इसके बाद वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर चली जाएंगी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी है, जहां 3 अक्टूबर को किसानों के एक प्रोग्राम में तशद्दुद फूटने से 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। हुकूमत ने सीतापुर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में ज़ेर हिरासत प्रियंका गांधी को भी लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी है। उन्हें लखीमपुर जाते हुए 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी का इल्ज़ाम है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, आमरीयत है और किसानों पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमले किए जा रहे हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालिया दिनों में टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा देखा गया है। मंगल की रात मुसल्लह अफराद ने दारुल हुकूमत श्रीनगर के एक मसरूफ़ इलाके इकबाल पार्क में वाक़े अद्वियात की एक दुकान में दाखिल होकर वहां मौजूद उसके मालिक मक्खन लाल बिंद्रू को नज़दीक से गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े के कोई 45 मिनट बाद मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर ही के लाल बाजार इलाके में भारतीय रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक खांचा फरोश वरिंदर पासवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसी तरह के एक और वाक़े में, जो श्रीनगर से 14 किलोमीटर शिमाल में वाक़े हाजन इलाके में पेश आया, एक मकामी कैब ड्राइवर मोहम्मद शफी को कत्ल कर दिया गया। इससे पहले 2 अक्टूबर को श्रीनगर के 2 शहरी अब्दुल मजीद गुरु और मोहम्मद शफी डार टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। पुलिस ओहदेदारों ने इन वाक़यात के लिए अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद लोगों में खौफ व हिरास पैदा करना और वादी कश्मीर में अमन की बहाली के लिए की जा रही कामयाब कोशिशों में रखना डालना है। ताहम इन टारगेट किलिंग्स के लिए, जिनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन ने शदीद मजम्मत की है, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सरगर्म अस्करी तंजीमों में से किसी ने भी ताहाल जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से ताइवान के बारे में गुफ्तगू की है।
दोनों रहनुमाओं ने ताइवान मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया है। ये पेशरफ्त ऐसे मौके पर हुई है जब ताइपे और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। मंगल को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडन का कहना था कि वो नहीं समझते कि सदर शी ताइवान मुआहदे पर अमल दरामद के अलावा कुछ और करेंगे। 7 माह के अरसे में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला टेलीफोनिक राब्ता था जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान तकाबुल को तनाज़े में तब्दील नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमरीका और फ्रांस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों के बाद पेरिस का दौरा इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम में वज़ारती मुज़ाकरात के साथ ख़त्म किया। ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ इजलास के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए कई चैलेंजों को उजागर किया। उन्होंने कोरोना वायरस, वबा, आबो हवा का बहरान, अदम मुसावात और तकनीकी बुनियादों पर पेशरफ्त करती दुनिया के लिए क़वानीन जैसे उमूर पर बात की। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में मंगल के रोज़ कहा है कि कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन रवा हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में एक चीनी सिफारतकार से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ज्यूरिच में बुध के रोज़ होगी, जिसमें सलिवन चीन के सिफारतकार यांग जी ची के साथ तिजारत, ताइवान और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ को कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। उमर शरीफ के नमाज जनाजा में अहले खाना और अजीज़ व अकारिब के अलावा उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनमें फ़नकार, सियासतदान, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और आम शहरी शामिल थे। उमर शरीफ इलाज की गरज से अमरीका जाते हुए जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग में 2 अक्टूबर को इंतकाल कर गए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए मारूफ फनकारों ने उमर शरीफ की फ़न्नी खिदमात को सराहा और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि उमर शरीफ ने सारी उम्र अपने फ़न के ज़रिए लोगों के चेहरों पर हंसी बखेरी। उमर शरीफ के जसद खाकी को बुध की सुबह कराची पहुंचाया गया था। उनकी तदफीन मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। एक नई मुतालियाती रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि फाइज़र और बायोनटेक की तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीन की 2 खुराकें 6 माह तक मौसर साबित होती हैं। दूसरी खुराक के बाद इंसान वायरस के असरात से बचा रहता है और हस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पेश नहीं आती। रवां बरस मई में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के दौरान तस्वीर कैमरे की आंख में कैद करने वाली फ़लस्तीनी फ़ोटोग्राफ़र फ़ातिमा बशीर सहाफ़ती अवार्ड अपने नाम करने वाली कम उम्र फ़ोटो जर्नलिस्ट बन गई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए एशिया सराय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 साला फ़ोटो जर्नलिस्ट फ़ातिमा बशीर को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के दौरान हैरतअंगेज़ तस्वीर लेने पर इंटरनेशनल वीमेंस मीडिया फाउंडेशन की जानिब से फ़ोटो जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। ये एजाज़ हासिल करने वाली वो कम उम्र सहाफ़ी हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।